अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हाल है। उम्मीद है आप घरों में खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले जो है ना हम स्टडी करते रहे हैं मैनुअल स्टडी एक क्लासरूम में, और हमने डिफरेंट दो किस्म के जो है ना दो चैप्टर जो थे हमने स्टडी किए थे, जिनमें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा था। उसके बाद हमने केमिकल बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टडी किया था, जिसमें लोकलाइज बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। हमने डिफरेंट किस्म के जो है ना वो टॉपिक्स जो है ना स्टडी किए थे मैनुअली। आज से हम जो है ना वर्चुअल स्टडी शुरू करेंगे, और इसमें जो है ना जो हमारे लास्ट चैप्टर रह गए थे, जिसमें जो है ना क्लासेस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको जो है ना हम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम स्टडी करेंगे, और उनके हम जो है ना सीखेंगे कि उनका नोमेनक्लेचर जो है ना हम कैसे असाइन करते हैं डिफरेंट किस्म के जो है ना कंपाउंड्स को। फर्स्ट वी सी द हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbon classification of hydrocarbon. If we see hydrocarbons, first of all can be divided into two categories: aliphatic hydrocarbons and aromatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons are further classified into acyclic hydrocarbon, which includes state chain or branch chain hydrocarbon, which includes alkane, alkenes, alkyne. Alkanes are those hydrocarbons which contain CC single bond, CH single bond. Similarly, the alkenes contain C double bond, and alkynes contain CC triple bond. Alkadenes contain more than two double bonds. And other class of aliphatic compound, alicyclic compound, which includes cycloalkanes, cycloalkenes, cycloalkadienes. Similarly, the hydrocarbon, the second branch is aromatic hydrocarbon, which includes benzene, alkyl benzene, and other cyclic compound with having 4n plus 2 pi electrons. We call it Huckel rule. Alkanes. Alkanes having general formula CN2n plus 2. Alkanes are hydrocarbons that contain only CC or CH single bond, except CH4, which contain all CH single bond, relatively inert as they have sigma bond, and sigma bond is stronger bond as compared to pi bond. These are these are saturated hydrocarbons that contain maximum possible number of hydrogen atom per molecules. First of all, we study the rules of nomenclature. First of all, select longest carbon chain. Second, identify all the substituents which are attached to the parent chain. Third one, number the carbon of the parent chain from the end that give the substituent the lowest number. First we start numbering from lowest number. Same substituent occur more than once, indicated by prefix di, ट्रॉय, टेट्रा एक्सेट्रा। अगर एक से ज़्यादा सेम सब्सटीट्यूएंट अगर अटैच हैं तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं डाई, ट्रॉय और टेट्रा। There are two or more than two different substituents. They are listed in alphabetical order. Suppose we have methyl and ethyl. So we write first ethyl and then methyl. Acyclic hydrocarbons is designated by cyclo prefix cyclo. If we have a cyclic compound like cyclopropane, propane, and first we use prefix cyclo, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Hydrocarbons having different number of carbons having different name. Just we can say methane, single carbon atom, ethane, two carbon atom, CH3, propane, CH3, CH2, CH3, and so on, butane, pentane, hexane, etc., which having different number of carbons. Branch chain alkane. Name the longest state chain. Give the parent name for the alkane. First of all, हमने क्या करना है, उसको जो है ना लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। सपोज़ उसमें अगर 5 कार्बन है तो हम उसको नाम देंगे पेंटेन का, अगर उसमें 6 कार्बन है तो हम उसको नाम देंगे हेक्सेन का, एटसेट्रा। नेम द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। द ब्रांचेस CnH2n plus 1 alkyl group. If we remove one hydrogen atom from alkane, then it become alkyl group. फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, CH3, और वी कॉल इट मिथाइल ग्रुप।
सिमिलरली इथेन से अगर एक ग्रुप को माइनस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए, तो इट बिकम इथाइल. वी हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक प्रोपाइल. प्रोपेन से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर लें, प्रोपाइल. सिमिलरली द CH3CH, that is called isopropyl group, that is propyl straight chain molecule, that is branch chain, that is called isopropyl. If we attach one methyl group at second last carbon, that group is called isopropyl. If we attach two methyl group at second last carbon atom, then it is called nu. Similarly, the methyl group, isobutyl group, we see carbon atom, different carbon atom, just like secondary carbon atom, that is attached with two other carbon, that is called tertiary carbon atom, that is attached with three different carbon atoms. First of all, we see the name of a compound. Number the position of substituent group with smallest possible number. We start it from lowest substituent 1 2. We call it 2-methyl. The group attached is called 2-methyl, which is indicated by red circle, that is methyl. That is called 1 2 3 4. Two position contain methyl, so we name it 2-methyl, and that contain 4 carbon, so we call it 2-methyl butane. Similarly, if there more than one substituent, same substituent attached, we name it di, tri, tetra, penta, hexa, and so on. Similarly, consider the following compound. We at position number 2, we assign two red circle. These red circle indicate methyl group. At two position, two methyl group are attached, to we name it 2,2-dimethyl प्रोपेन. जो कि एक जैसे दो ग्रुप अटैच हैं टू पोजीशन पे, तो हम इसे नाम देंगे 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन. बिटवीन डिजिट्स, अगर दो डिजिट्स आ जाते हैं तो उन डिजिट्स के दरमियान जो हम रखेंगे कामा लगाएंगे, और बाकी जो डिजिट्स और अल्फ़ाबेट आ जाता है डाईमिथाइल, उनके दरमियान हाइफन का वर्ड हाइफन यूज़ करेंगे. कंसीडर अनदर कंपाउंड. वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम टू साइड्स 1 2, but we start numbering from lowest, which give lowest number to the substituent. 1 2. If we chlorine at position 1, we start when chlorine is at position 1 1 2 3 4 5 6, we name it 1 5 5 trichloro, 1 5 5 trichloro. That is true name. Consider another molecule. The lowest possible, we start it 2 2 2 2 dimethyl 2 2, two red circle are 2 2 dimethyl. At position number 3, ethyl group is attached, so we alphabetically ethyl comes first. 3 ethyl 2 2 dimethyl pentane 2 2 3 ethyl 2 2 dimethyl pentane. Parent chain contain 5 carbons. Consider another molecule 3-ethyl 1 2 3 4 5. Parent name is pentane. At position number 3, 1 ethyl group is attached, and position number 2, 2 methyl group are attached. 2 2, चूँकि इसमें इथाइल ग्रुप जो है ना पोजीशन नंबर 3 पे है, और अल्फ़ाबेटिकली हम इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे मिथाइल ग्रुप से, तो आपके पास आ जाता है 3 इथाइल 2 2 डाईमिथाइल पेंटेन. दैट इज़ करेक्ट नेम. In a case of cycloalkanes, according to names carbon, the number of carbons used are जैसे पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, same prefix is used. But in a case of cyclic compound, only we would use cyclo before the parent name. Cycloalkanes are alkane in which all or some of the carbon atoms are arranged in a ring की फॉर्म में जो है ना एक से ज़्यादा जो है ना वो आपस में अटैच होते हैं. जैसे हम देखते हैं कि साइक्लोअल्केन इन स्केलेटल फॉर्म हमारे पास
साइक्लोप्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन अटैच हैं। तो CH2 ऑल जितने भी इसमें कार्बन अटैच हैं, CH2 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 इन सारे आपस में अटैच हैं, इनकी फॉर्म ऑफ रिंग है। तो हम इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली वी टुक अनदर मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास ये 4 कार्बन वाला मौजूद है, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूटेन होता है, चूँकि ये रिंग के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम वर्ड इसके साथ इस्तेमाल करेंगे साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम इस 5 वाले कार्बन पे आ जाएं, 5 कार्बन तो नॉर्मली हम 5 कार्बन जिसके होते हैं हम उसे कहते हैं कि साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 5 कार्बन है, हमने इससे पहले एक प्रीफिक्स यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं साइक्लो, तो हम इसे नाम देंगे साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, 6 नंबर होते हैं कार्बन के, 6 वाले को हम कहते हैं हेक्सेन। हम इससे पहले प्रीफिक्स यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली आपके पास जो है ना डिफरेंट किस्म के कंपाउंड आ जाते हैं और इसमें मिनिमम जो कार्बन होते हैं साइक्लिक कंपाउंड में वो 3 से स्टार्ट होते हैं, चूँकि 2 कार्बन अगर हो जाएँ तो उसमें जो है ना आपके पास रिंग पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे जो कम रिंग कार्बन वाला रिंग होता है वो आपके पास क्या होता है, कार्बन नंबर 3 कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद एंड सो ऑन 4 5 6 हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑनेन, डीकेन, ये डिफरेंट किस्म के आ जाते हैं। जब हम रिंग की स्टेबिलिटी को देखते हैं तो आपके पास रिंग कंपाउंड जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस तरीके से जो है ना रिंग का जो है ना बॉन्ड एंगल जो है ना बढ़ता चला जाएगा, उसी तरीके से उसकी जो है ना स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम इसको देखें कार्बन साइक्लोप्रोपेन, तो इसमें आपके पास का जो है ना एंगल जो है ना आलमोस्ट कम होता है। एंगल जब कम होता है 60 के करीब, तो इसमें जो है ना रिपल्जन ज़्यादा होती है और ये सबसे अनस्टेबल जो है ना आपके पास रिंग है। इसी तरह जब हम चले आते हैं साइक्लोब्यूटेन की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना 90 का एंगल है, तो 90 का एंगल दैट इज़ मोर स्टेबल दैन साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली जब हम साइक्लोपेंटेन पे आते हैं तो साइक्लोपेंटेन का जो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड एंगल है वो साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो साइक्लोब्यूटेन ज़्यादा आपके पास स्टेबल होता है। सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल उसका जो एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन जितना जो है ना उसके दरमियान मोर स्टेबल ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन। जितना उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाता है उसका एंगल स्ट्रेन क्या होता चला जाता है, लेस एंगल स्ट्रेन हो चला जाता है। उसकी जो है प्रेशर है उस पर कम पड़ता चला जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा वो रिलीफ हो जाता है, जिसकी वजह से जितना आपके पास लेस एंगल स्ट्रेन होगा उतना ही आपके पास साइक्लिक कंपाउंड जो है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या है, स्टेबल होगा। फिर ये जो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, इन साइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंट किस्म के ग्रुप अटैच होते हैं, उनको भी हम डिफरेंट किस्म के जो है ना नाम दे सकते हैं। जैसे आपके पास खड़ा है साइक्लोप्रोपेन, अगर इसके ऊपर हम कोई हैलोजन ग्रुप लगा दें जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वी कॉल इट क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अगर हम यहाँ पे जो है ना ब्रोमीन लगा दें साइक्लोब्यूटेन के ऊपर तो हम इसे नाम देंगे ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली दैट इज़ मोस्ट कॉमन साइक्लोहेक्सेन। अगर हम इस साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, जस्ट आपके पास फ्लोरीन है या क्लोरीन है, अगर एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं और वो डिफरेंट हैं, जैसे एक आपके पास फ्लोरीन लगा हुआ है और दूसरा आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो जब आप इसके नेमिंग को स्टार्ट करेंगे तो आप अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे कि जो पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको आप बाद में लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना उसका जो प्रीफिक्स है साइक्लोहेक्सेन है, सो ऑन साइक्लोपेंटेन है, आप उसको जो है ना यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।